Morning to all students. So, students, we are doing chapter My Childhood. That is an extract from Dr. APJ Abdul Kalam's autobiography, Wings of Fire. Okay, so we were reading about APJ Abdul Kalam's three childhood friend. Okay, Ramananda Shastri, Arvindan, and Siva Prakasna. And three of them belonged to Hindu Brahmin family. Ramananda Shastri, when he grew up, he took over the charge of priesthood from his father. And Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Lots of pilgrims used to come to Rameshwaram. Okay, pilgrims बहुत आते हैं रामेश्वरम में to visit the various temple. So Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. And Siva Prakashan, he became a catering contractor for the Southern Railways. Catering means that provides food and drinks. Okay, so Siva Prakasna, he settled into the Southern Railways as a catering contractor. Okay, and in the next paragraph, Abdul Kalam describes his closeness to Hindu religion. Okay, he had already told that all the three friends, they belong to Hindu Brahmin families. Okay, so during the annual Shri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site. Okay, so when he was a child, he still remembers his family used to participate in Shri Sita Rama Kalyanam ceremony. ओके, एक सेरेमनी होती थी जिसमें सीता राम उनका कल्याणम मतलब उनकी मैरिज करी जाती थी और हर साल ये सेरेमनी होती थी. एंड अवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडोल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट. ओके, आइडोल्स मीन्स इमेजेस, मूर्तियां. ओके, तो टेम्पल्स में से जो भगवान की मूर्तियों को एक मैरिज साइट तक लेके जाया जाता था. टेम्पल से लेके मैरिज साइट तक लेके जाया जाता था. और कैसे लेके जाया जाता था? बोट्स में. ठीक है, और बोट्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म लगे होते थे जिनके ऊपर वो आइडोल्स, वो इमेजेस भगवान की रखी जाती थी. और टेम्पल से लेके इसको मैरिज साइट. अब मैरिज साइट कहाँ पे था? दैट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था. ठीक है, तो रामा तीर्था एक पॉन्ड है, उसके मिडल तक उन सभी आइडल्स को लेके जाया जाता था. एंड दैट वॉज नियर अवर हाउस. दैट वॉज वेरी मच नियर टू एपीजे अब्दुल कलाम्स हाउस. Okay, so events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Okay, so यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे वो पूरी तरह से मिक्स था मुस्लिम कल्चर में हिंदू कल्चर भी. ठीक है, तो बेड टाइम स्टोरीज होती थी. रामायणा से भी प्रोफेट्स कि दूसरे प्रोफेट्स के साथ साथ रामायणा की स्टोरीज भी उनकी मदर और ग्रैंड मदर उनको बेड टाइम स्टोरीज की फॉर्म में सुनाते थे. प्रोफेट्स कौन होते हैं? जो भी रिलीजियस टीचर्स होते हैं. ठीक है, सो वन डे आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल. हियर ही टेल्स वन इंसिडेंट फ्रॉम हिज प्राइमरी स्कूल. ओके, वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat on the front row next to Ramananda Shastri. Okay, so one day when he was studying in 5th standard in primary school, a new teacher came to school, and as a Muslim he used to wear cap and used to sit in the front row next to his close friend Ramananda Shastri. And who wore the sacred thread? सेक्रेड थ्रेड, होली थ्रेड जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं.
The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. Stomach means tolerate कर पाना, digest कर पाना. तो न्यू टीचर को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाई कि हाउ अ हिंदू priest's son could sit with the Muslim boy. In accordance with our social ranking as the new teacher saw it. ठीक है, as the new teacher saw it, as the new teacher thought अकॉर्डिंग टू द सोशल रैंकिंग. मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है दैट वाज लोअर, बट हिंदू ब्राह्मण दे आर हैविंग हाई स्टेटस इन सोसाइटी. तो ये कौन सोचता है, किसकी सोच है? एज द टीचर सॉ इट, जैसा कि वो टीचर सोचता था. सभी नहीं सोचते थे ऐसा, कुछ लोग ऐसा सोचते थे. आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. तो उसको बोल दिया गया कि जहां से उठो और बैक बेंच पे जाके बैठो. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. हिज फ्रेंड ऑल्सो फेल्ट वेरी मच सैड एंड बैड. ही लुक्ड utterly downcast, utterly completely downcast, sad and disappointed. As I shifted my seat in the last row, the image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. तो जब वो लास्ट रो पे उसको बिठा दिया गया, ये उसकी जो इमेज थी ये हमेशा उसके दिमाग में ये रही. इस बात का, इस इंसिडेंट का इफेक्ट हमेशा उसके दिमाग में रहा. ये बात उसको याद रही कि कैसे एक टीचर ने ऐसा करा गया था. ऑल्दो द मैटर वॉज रिजॉल्व्ड. ओके, सो आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. तो घर जाके दोनों बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया, अपने अपने पेरेंट्स को, रिस्पेक्टिव पेरेंट्स. लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन अवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. तो लक्ष्मणा शास्त्री जो कि उसके फ्रेंड रामानंद शास्त्री के फादर थे और वहां के एक टेम्पल में मेन प्रीस्ट थे, तो उनके सामने टीचर को बुलाया गया. ठीक है, और टीचर को ये बोला गया कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. ओके, वो तो एक टीचर है, वो ये ऐसी बातें कैसे स्प्रेड कर सकती हैं बच्चों के सामने, कैसे ये चीजें बोल सकती है अबाउट सोशल इनइक्वालिटी. ओके, सो ऑल रिलीजियंस आर इक्वल. ओके, देयर शुड नॉट बी एनी सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस. कम्युनल religious intolerance, hatred towards other religion. We should respect all religion. To respect other religion, that is called tolerance, and to hate other religions, that is called intolerance. Okay, so he should not spread these things in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Okay, he straightforwardly asked the teacher either to say sorry or otherwise he has to leave the school and island as well. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. तो टीचर ने सिर्फ रिग्रेट नहीं करा, सॉरी नहीं करा, बट जिस ढंग से उन्होंने उस सारे मैटर को संभाला था, कन्विक्शन मीन्स अ स्ट्रांग ओपिनियन और बिलीफ. ओके, तो बड़े स्ट्रांगली उन्होंने अपना ओपिनियन रखा था, बड़े स्ट्रांगली वो इस चीज में बिलीव करते थे अबाउट सोशल इक्वालिटी. तो उस टीचर ने सिर्फ रिग्रेट नहीं, सिर्फ सॉरी ही नहीं किया, बल्कि उस यंग टीचर को हमेशा के लिए रिफॉर्म भी किया, उनको एक ट्रांसफॉर्म्ड टीचर बनाया हु believed in social equality now. So on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. On the whole, जो छोटी सी जगह थी रामेश्वरम, the people were very much rigid. Rigid means that who do not want to change. In terms of segregation, segregation means separation or division of different social groups. इन चीजों में वो बहुत बिलीव करते थे. ठीक है, कि ये हिंदू कम्युनिटी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है, दीज थिंग्स में. हाउएवर, माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर
though an orthodox Brahman with a very conservative wife was something of a rebel. Rebel means one who speaks against the established norms. तो वो उनमें से एक रिबेल था जो इन चीजों के अगेंस्ट खड़ा होता था. ठीक है. ऑल्दो उसकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव थी. कंजर्वेटिव पीपल कौन होते हैं? दोज हु डू नॉट वांट टू चेंज. ठीक है. ट्रेडिशनल जो पहले से चला आया उसी पे स्ट्रिक्ट रहना. उसकी वाइफ कंजर्वेटिव थी बट वो खुद बहुत प्रोग्रेसिव माइंडेड थे. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजिली. अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले पीपल अच्छी तरह आपस में मिक्स हो सकें, इसके लिए उन्होंने सारे सोशल बैरियर्स को, रुकावटों को तोड़ने के लिए बेस्ट एफर्ट्स दिए. एंड ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज. तो वो अब्दुल कलाम को भी ये बताते थे कि तुम भी आगे बढ़ो, पढ़े लिखो, ताकि बाकी की जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं बिग सिटीज के, तुम भी उनके बराबर आके खड़े हो जाओ. सच ए प्रोग्रेसिव माइंडेड पर्सन वॉज ही.